आपकी पसंदीदा डिशेस क्या हैं؟ میں ظاہر مٹن ہی کھاتا ہوں. مٹن کے علاوہ سبزی نہیں کھاتا. دال بھی کھاتا ہوں تو گوشت کے ساتھ کھاتا ہوں. اور میں ہر روز ایک علیحدہ ڈش گوشت کی کھانا پسند کرتا ہوں. خاص طور پر صبح کے ناشتے میں ریڑیوں پہ یا تھالوں پہ جاتا ہوں. ان اے وے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزہ اس چیز دیکھیں نا، ہمارے گھروں میں مرغی اس وقت پکا کرتی تھی رمضان میں جب یا مرغی بیمار ہو یا گھر میں کوئی بیمار ہو. دیسی مرغیاں ہوتی تھی، اوپر سے دڑبے سے پکڑی، اور جب ذبح بھی کرو تو دکھ ہوتا تھا کہ یار پالی ہوئی مرغی تھی. آپ کو اپنی والدہ کی پکی ہوئی ہانڈی بہت پسند تھی. ان کا بنا ہوا پتلا شوربہ بھی بہت اچھا لگتا تھا. گھر والی تو ہے نہیں، کمی تو محسوس کرتے ہوں گے. میں تو آپ کو بتا جی، اب آپ کو کیا بتاؤں، یہ تو نہیں تھا نا کہ ڈونگے ہیں پلیٹیں ہیں، ہنڈیا میں سے ہی پلیٹ رکھی آگے. ماشاءاللہ بہنیں بھائی بھی کافی تھے، درجنک تھے، درجن سے ایک آدھا زیادہ ہی ہوگا. تو یہ اتنے سارے برتن تو نہیں آج کے دور میں دھوئے جا سکتے تھے. ہمارے ماؤں کے ملازم بھی نہیں ہوتے تھے، جھاڑو بھی خود لگاتی تھی، پوچھا بھی خود دیتی تھی، پھر وہ انگیٹھی بھی خود بناتی تھی. پھر رات کو میں تو پھونکنی لے کے اپنی ماں کے ساتھ، تو صبح صبح میں اٹھ جاتا تھا. میری ماں حالانکہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کا، لیکن میری اس سے اٹیچمنٹ اتنی تھی کہ ذرا ماں نے اٹھنا تو میں نے بھی ایک دم ڈگ کر کے بیڈ کو چھوڑنا اور ماں کے ساتھ. میں ہمارے یہاں کشمیری چائے پکتی ہے تو ماں کی چائے میں پھینٹتا تھا. تو جب تھوڑا سا رنگ آ جاتا تھا پھر میں پھینٹنا شروع کر دیتا تھا. تو ہمارے ہاں روایتی طور پہ آپ کو پتہ ہے مردوں کو زیادہ پہلے روٹی دے دی جاتی تھی، بچیوں کو. میں بڑا اس میں، اور میں ایک خاص قسم کی بوٹی کھاتا تھا، لیگ پیس، جب کبھی بھی اچھا یعنی. تو میرے بھائیوں کو بڑا سخت اعتراض تھا کہ یہ بڑی ناانصافی ہوتی ہے، بڑی زیادتی ہوتی ہے. اور لیکن میری ماں کہتی تھی پھر وہ ساری ہنڈیا کھا جائے گا. اور پھر میں برفی کا بڑا شوقین تھا، اب بھی ہوں. میرے فریج میں اوپر جو ہے، کراچی جاتا ہوں ہر قسم کی برفی پڑی. رات جب آنکھ کھلتی ہے نا میں تھوڑی سی برفی کھا لیتا ہوں. ماں کے دور میں بھی ایسے ہی تھا. میری ماں آنے دوانی کی نیچے، یا مر گیا ہوگا یا مین مٹھائی والا تھا، تو روز 2 آنے کی مٹھائی میرے لیے میرے تکیے کے نیچے رکھتی تھی. تو میں اٹھتے سار اسے کہتا تھا اماں برفی. تو پھر بعض کا دوسرے بچے بھی آنا شروع ہو گئے. مجھے یہ پسند ہی نہیں تھا، میں ان کو لاتے مارتا تھا. تو پھر میری ماں اس چیز سے بڑی پریشان تھی کہیں اپنے کسی بھائی کو مار ہی نہ دے. منفرد شروع سے ہی ہیں آپ، کسی کو برداشت اور نہیں. میں اپنی ماں کے ساتھ کسی کو اور لیٹتا، میرے چھوٹے بھائی جو آئے یا بہنیں آئی تو میں ان کو ٹھڈے مارتا تھا. ٹھڈے مارتا تھا باقاعدہ کہ بھئی نہیں، میں نے سونا اپنی ماں کے ساتھ. تو وہ برفی مجھے آج بھی یاد ہے. کھجور اور برفی بچپن میں میرا من باتا آپ کہہ سکتے ہیں. برفی آج بھی ہے، کھجور میں اب اتنی نہیں کھاتا. اور وہ گھر والی کی کمی، یہ ایسی باتیں ہیں آپ اینکروں نے بنائی ہوئی ہیں کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. یہ سب فضول باتیں ہیں. عورت بناتی اس آدمی کو جو بڑا ہو، جس کو پتا ہو یہ ٹھیک ہوگا. بیچارے غریب سے کون رشتہ کرتا ہے؟ جس کا پتا ہو یہ مالدار ہے، گاڑی ہے، ریل ہے، پیل ہے، عورت کو آپ ویسی کریڈٹ دیتے. ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک، سب بکواس ہے. کسی بڑے آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ نہیں. عورت ہاتھ ہی اس پہ رکھتی ہے جس کا اس کو پتا ہو اس نے بڑا بننا ہے. تو آپ کو کمی محسوس؟ ایسی باتیں ہیں. تنہائی بہت بڑا اثاثہ ہے. جو مزہ سگار کا تنہائی میں آتا ہے پینے کا. ان وے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں غلام زندگی گزارتے ہیں، بچوں کے لیے زندہ ہیں جی، بیوی سے ڈرے ہیں بچے. میں جنگ کے میرے استاد تھے شورش ملک صاحب. ایک دن کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. 2 میرے استاد تھے، شورش ملک اور شورش کشمیری. تو میں 10-12 سال 15 سال 20 سال روز جنگ میں روٹی کھاتا تھا ان کے ساتھ. 20 سال کم و بیش. تو ایک دن ملک صاحب بڑے اپسیٹ تھے. میں نے کہا ملک صاحب کیا ہوا؟ کہتا یار شیخ رشید پہلے تو تیری بھابی کافی سی، ہوں میرا پتر بھی جوان ہو گیا، میرے کپڑے اس نو پورے آ گئے تو میری سمجھ لے زندگی آرام ہو گئی ہے. جس دن پیو دے کپڑے پتر نو آ جان تے تیری بھابی جڑی ہے میرے تے اور سوار ہو گئی. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. سو ہم لوگوں نے مفاد کے سارے رشتے رکھے ہوئے ہیں. جب بچہ نالائق ہوتا ہے، جو مزاروں سے لیتے ہیں، دعاؤں سے لیتے ہیں، تعویذوں سے لیتے ہیں، اس کو ناخلف قرار دے دیتے ہیں کیونکہ ہمارا انٹرسٹ نہیں وہ لوک آفٹر کرتا. ہر رشتہ مفاد کا رشتہ ہے. لوگوں نے بہانے بنائے ہوئے ہیں سوائے ایک ماں کے رشتے. آپ سگار بہت پیتے ہیں. روزے کے دوران
तंबाकू की कमी महसूस तो नहीं होती? बहुत तंग करता है जी, किसी चीज़ का तंग नहीं करता। पेट माशाल्लाह गुजरांवाला के स्टाइल का हो गया तो भूख भी इतनी नहीं लगती। सिगार बड़ा तंग करता है और रोज़ा खुलते सारी सिगार पीता हूँ और फिर पीता रहता हूँ। सहरी में भी एक दो पूरा कोटा कर लेता हूँ सहरी और अफ्तारी के दरमियान, और ये बड़ी मूजी बीमारी लग गई है, जान नहीं छूटती। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान दोनों आपके सियासी दोस्त हैं, इन दोनों की शख्सियात का मुआजना कैसे करेंगे? इत्तेहादी में इमरान खान साहब का हूँ, उनसे मेरा तल्लक है सियासी। बहुत मुश्किल आपने सवाल किया है, इन दी एंड चल जाएंगे जी। मुश्किल क्या है? मुश्किल है एक वन वे डिसाइसिव है। ताहिरुल कादरी के पास फैसला करने की तनहा कुव्वत मौजूद है, इमरान खान के पास ये कुव्वत नहीं है। उसकी एक कोर कमेटी है जिसमें भांत भांत के लोग हैं, बट आई एश्योर यू कि दोनों इकट्ठे होंगे और दोनों फैसला कुन जंग लड़ेंगे, या दोनों हार जाएंगे या दोनों जो है चांसेस ये हैं, ज्यादा चांसेस ये हैं कि दोनों विक्ट्री स्टैंड पे होंगे। इन दोनों में से लीडर कौन होगा? देखो जी, जब लीडर की बात आती है 9 सितारे थे, बहुत बड़ा सितारा था मौलाना मुफ्ती महमूद थे ना, ठीक है, लेकिन वोटों के लिए असगर खान था। अब दूसरे उस्ताद का भी आपको सुना दूंगा, शुरश कश्मीरी कहते थे, तकरीर सुनते हो ताउल्ला शाह बुखारी की, बेलचा उठाते हो खाकसार का, वोट देते हो कायदे आजम को, मुसलमानों। यानी ये उनका एक था कि वोट लोग अपना अपना देंगे जी। वोट की देखें, वोट की कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स और है, तकरीर की सियासत और है, इनकलाब की सियासत और है। इनकलाब के लिए ताहिरुल कादरी का एजेंडा A1 है, वोटों के लिए इमरान खान की पार्टी में सोच है कि हम डेमोक्रेटिक, अगर आप देखें तो MQM भी यही कहती है कि वी वांट ए रेवोल्यूशन विद ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इमरान खान भी यही कहता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। ताहिरुल कादरी साहब की एक सोच है कि भाई जमहूरियत, ये अंगूठी, ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, और वजन ताहिरुल कादरी की बातों में भी उतना ही है जितना किसी और की बात। आपकी जाती क्या राय है? आप जमहूरियत के साथ हैं या किसी और तरीके से तब्दीली लाना? मैं तो कहता हूं जी तब्दीली आनी चाहिए। अब मैं इस नतीजे पे पहुंच गया हूं, इन खानदानों के निजाम से जान नहीं छूट सकती। देखें, 100 बंदा हमारा गोली, किसी पे पर्चा ही कायम नहीं है, फिर कैसे इंसाफ हो? अगर एक ASI पर्चा लिख देता जाके, एक अल्लाह देता सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर लिख देता कि ये बंदे यहाँ ये हुए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के साथ पर्चा दे देता, मैं कहता कि यहाँ वोट से तब्दीली आएगी, यहाँ वोट से तब्दीली नहीं आएगी। यही चेहरे हैं। जब ये कहते थे हम तब्दीली लाएंगे इस असम्बली में, वो लोग भी मौजूद हैं जो मुत्तहिदा पाकिस्तान के मेंबर थे। कैसे तब्दीली आएगी? दौलत का निज़ाम है, चोरी का निज़ाम है, मफाद का निज़ाम है, जागीरदार का निज़ाम है, इंडस्ट्रियलिस्ट का निज़ाम है, अपने लिए कानून बनाते हैं, सब टैक्स हम देते हैं। हमारा अपने खानदान का 107 अरब रुपया मेरी बेटी के ये जो इंतजाम है बेनजीर इनकम सपोर्ट का, 17 अरब रुपया IDPs को दे दो जी, खुदा की कसम दम तोड़ देगी दहशतगर्दी। और अगर आपने IDPs को ख्याल ना रखा, बिल्कुल दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, बढ़ जाएगी, सारे मुल्क में फैल जाएगी। शेख साहब, आपका शरीफ बरादरान से एक लंबा तल्लुक रहा, फिर नाराजगी भी रही, अब क्या ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है या कभी कभार कोई पैगाम आ जाता है? देखें, उन्होंने तो मोहब्बत का इजहार किया फोन शोन पर, लेकिन मैं बहुत दूर चला गया हूं, मैं धोखा नहीं देना चाहता। आपको फोन आया उनको? मैं अब तरीके से कह सकता हूं ना, किसी की भी इज्जत रहनी चाहिए। उन्होंने मोहब्बत के फोन किए हैं, पर मैंने कहा मैं बहुत आगे चला गया हूं। जब मैं कहता था कि अगर वो लाल हवेली आ जाते तो कोई और बात थी। और देखें ना, अब कल भी इल्ताफ भाई ने मेरे लिए इतनी बात की, ये सारे लोगों को उस वक्त ख्याल आता है जब मैंने इमरान खान के साथ इत्तेहाद कर लिया तो इन सारे लोगों को मेरे से मोहब्बत इनकी जाग गई। हालांकि इल्ताफ भाई मुझे ये कहते थे कि आपने कराची से लड़ना है एक सीट पे, अपनी सीट पे लड़ा। मैंने कहा मैं इमरान खान का इत्तेहादी हो गया हूँ। इल्ताफ भाई आपका शुक्रिया। उन्होंने मुझे अपोजिशन पे भी सारे, इल्ताफ भाई ने कहा कि सारी वोटें शेख साहब हमारी अपनी आपकी हैं, उधर से आप 4 वोटें ले लें, लेकिन उन्होंने नहीं दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने दिल में लगाई। मेरा अज़्म है कि इस मुल्क में गरीब का राज, काला काला रसूल अल्लाह का अलम बुलंद करना है, और इस मुल्क में हकीकी सियासत जिसमें मसाइल ज़्यादा ऊपर आए लोग, उसके लिए काम करना है।
सियासी सितारा तो पहले ही थे, अब टीवी स्टार बन चुके हैं, पेशीन गोइयां करते हैं, कुछ गलत कुछ सही, बाद में उनका कैसे तजिया करते हैं? एक्चुअली कोई इल्हामी सी इस उम्र में आके अल्लाह ताला मेरे जहन में कोई मैच्योर हो गया हूँ मैं, और मेरी सिर्फ जुबान मेरे कंट्रोल में नहीं, दिल और दिमाग कंट्रोल में है। और जुबान कंट्रोल में नहीं, खुद ब खुद बातें इल्हामी सूरत हाल। मैं गुनाहगार इंसान हूँ, ना पीर हूँ ना कोई हूँ, बट समथिंग कम्स इन माई माइंड। जब मैंने बेनज़ीर का कहा कि ये खूनी इलेक्शन होगा, तो आसिफ जरदारी ने मुझे कहा कि तूने बहुत पहले मुझे कह दिया था। इन सब लोगों का ख्याल है कि मैं कोई पीर फकीर के मान, नो 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 नो। देखिए, मैंने कहा कि डॉलर ये लाएं, मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये 150 अरब $1.5 बिलियन ले आएंगे। यानी मेरी सिक्स सेंस ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इन पे कोई इतना मेहरबान हो जाएगा कि $1.5 बिलियन इनको मिल जाएंगे। और मैं अब ये कह रहा हूं कि कुर्बानी से पहले इनकी कुर्बानी, इन्होंने छोटी मोटे सदके के बकरे दिए हैं, एक आधे मरकज में भी ये तब्दीली करने लगे हैं, पर सदके का बकरा और है, कुर्बानी का बकरा और है। 100 बंदों को गोलियां लगी हैं जी, जुल्म की इंतहा है। जब आपकी कोई पेशीन गोई गलत निकलती है तो फिर आप क्या सोचते हैं? एक बहुत बड़े फिलासफर ने मुझे कहा था, उसका नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ लेंगे कि मैं भी इतना दूरस तलक वाला आदमी हूं, कि शेख रशीद, अगर 6 में से 3 निशाने पे तेरी बात हो जाए ना, बी हैप्पी। अगर 6 बातों में से 3 बातें भी तेरी ठीक हो जाए तो तू समझ ले कि तू पाकिस्तान का बहुत बड़ा सियासतदान है। क्योंकि ये भी कोई आम बात, सिर्फ मेरा टाइमिंग जो है ना बहुत बिफोर है, मेरी टाइमिंग और ट्यूनिंग जो है, मैं वक्त से बहुत पहले बात करती से। अब मैं लोगों को कहता हूं कि मिड टर्म इलेक्शन हल है, आप ये रिकॉर्ड रख लें, कोई नहीं कहेगा कि हम जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं। खुदा की कसम, अंदर से सब यही कहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन ही अब हल है। देखें, अगर 4 डब्बों में गंद है, 4 डब्बों हमारे रख लें, 4 अपने रख लें, अगर इनमें 2 डब्बों में गंद और भूसा और जाली वोटें और स्टंप की हुई वोटें हैं, फिर इसका हल क्या है? जमहूरियत तो खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। कौन बेवकूफ है जो कि वो सियासी गुनाह कबीरा होगा इस असेंबली में बैठे रहना, जब 4 के 4 डब्बे खराब हो, शायद किसी एक का ठीक भी निकल आए, और फिर असेंबली का ना घेराव करना, ये भी मैं समझता हूं ईमान की कमजोरी होगी। और जमहूरियत को बचाने का तरीका क्या है? तो आपके ख्याल में अब हाल सिर्फ मिड टर्म इलेक्शन? मेरे ख्याल, मैं अब कह रहा हूं, ये सब लोग उस वक्त कहेंगे जब खुदा न खास्ता आग लग जाएगी, जब पुलिस, देखें ना, पुलिस का मोरल इतना डाउन है कि लाल हवेली के बाहर जो मेरे महल्ले वाले बेचारे मोटरसाइकिल रखते हैं, ASI, वो कहते हैं शेख साहब महल्ले से डर लगता है, वर्दी पहन के थाने में जाके वर्दी पहनते हैं, कहते हैं जी गली में कोई ईंट मार देगा। ये मेरी लाल हवेली के पीछे है जो 2 मोटरसाइकिल रखते हैं, कहते हैं शेख साहब डर लगता है कि घर की खिड़की से कोई ईंट आके मार देगा हमें, क्योंकि इतनी नफरत हो गई है। और इस मिनाजुल कुरान के वाकया के बाद आप हमेशा कहते हैं कि आप बहुत मजहबी हैं और हमेशा हवाले भी देते हैं मजहब के, जाती तौर पर इस्तिखारा करते हैं अपने फैसलों में, कैसे फैसले करते हैं? देखें, मैं खूबसूरत तरीन जिंदगी गुजार रहा हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं खाना काबा के अंदर रोज़ा रसूल इतनी दफ़ा गया कि फिर मैंने सोचा कि किसी और का भी हक होना चाहिए। फिर मेरे अंदर एक अंगड़ाई जज़ब मुजज़न हुई कि मैं खाना काबा की छत पे जाऊं। मैं गुनाहगार इंसान था, मेरी कोई शनाख्त नहीं, मैं किसी की जूती के बराबर नहीं। एक मुसलमान के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि या अल्लाह मैं काबा की तेरी छत के ऊपर सजदा हूं। मैं वेल प्लान करके यहां से गया, पूरी स्ट्रेटजी बना के गया। हालांकि जनरल हामिद साहब हमारे भाइयों की जगह, वो कहते हैं हर रोज तू काबा शरीफ चला जाता है। मैं कहा जी मुझे बुलावा आता है और कोई नहीं जा सकता जब तक बुलावा ना आए। तो मैंने काबा शरीफ के अंदर, काबे की छत के अंदर बैठे हुए ये प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा जी कि इसकी जो असल में तो जन्नत का दरवाजा काबा के अंदर से ऊपर को जाता है ना, मैंने कहा जी ये खुलवाएं।